ڈاکٹر جمشید انور کے پاس اتنا وقت نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس روز اسے خاصی فراغت میسر آ گئی۔ وہ اس طرح کہ اسے عاشق علی کے یہاں بھیجا گیا تھا۔ انڈونیشی ہندوستانی مسلمانوں کی تو خاص طور پر دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا تھا کہ ہمارے ایریا کمانڈر عثمان ہیڈ کوارٹر والوں سے کہا تھا کہ عاشق علی کی حالت ٹھیک نہیں، اس لیے کوئی اور ڈاکٹر بھیجا جائے۔ ڈاکٹر جمشید اسپیشلسٹ نہیں تھا، نہ وہ ایکسپرٹ تھا، لیکن اسے زخموں کی مرہم پٹی وغیرہ کا خصوصی تجربہ ہو گیا تھا۔ چھری، چاقو، تلوار، خنجر بلکہ کلہاڑی کے زخموں کی مرہم پٹی آسان ہوتی ہے، لیکن جو زخم رائفلوں اور مشین گنوں کی گولیوں کی پیدا کردہ ہوتا ہے یا توپ کے گولے کے ٹکڑے سے جو زخم آتا ہے، اس کی مرہم پٹی آسان نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر جمشید جب یہاں پہنچا تھا وہ ایسے ہی زخمیوں کا علاج کرتا رہا تھا۔ ہیڈ کوارٹر نے اس روز اسے صرف عاشق علی کے یہاں بھیجا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی شفا دی تھی کہ صبح آتے ہی اسے عاشق علی کی پٹیاں کھولی، زخم دیکھے اور معلوم نہیں اس نے کیا کیا کہ پٹیاں باندھ دی، اور کچھ دیر بعد عاشق علی ہوش میں آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا تو نہیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس نے مرہم پٹی کے دوران کوئی وظیفہ پڑھا ہوگا۔ اب وہ عاشق علی کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا، لیکن ابھی اسے وہیں رہنا تھا اور رات دن عاشق علی کی صحت یابی کا جائزہ لینا تھا۔ اس طرح اسے اتنی فرصت مل گئی کہ میرے ساتھ باتیں کرتا اور سنتا رہا۔ میں چونکہ ہندوستانی مسلمان تھا، اس لیے وہ بھی میرے ساتھ باتیں کرنا اور سننا چاہتا تھا۔ معلوم نہیں آپ کو کہ ایسا تجربہ ہوا یا نہیں، اس نے کہا۔ یہاں کے صلیبی مسلمانوں کی اس جنگ آزادی کو ناکام کرنے کے لیے زمین دوز کارروائیاں کر رہے ہیں، ہندو بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ صلیبیوں میں ایک تو انڈونیشی عیسائی ہیں اور دوسرے ڈچ یعنی کہ ولندیزی ہیں۔ میں ان کی زمین دوز تخریب کاری کے کچھ واقعات سنانا چاہتا ہوں، اور ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ یہ کفار مسلمانوں کی جنگ آزادی کو سبوتاش نہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ کفار بری طرح ناکام رہیں گے۔ میں نے کہا، جو قوم دنیا کی دو طاقتور فوجوں ایئر فورس اور نیوی کو ناک کے چنے چبوا رہی ہے اور فتح صاف نظر آنے لگی ہے، اس قوم کا زمین دوز کارروائیاں کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر جمشید باتوں کے دوران 3 بار عاشق علی کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا تھا، اور اس نے ہر بار آ کر بتایا تھا کہ اب عاشق سویا ہوا ہے اور اس کی نبض بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔ وہ ایک بار پھر گیا اور عاشق علی کو دیکھ آیا۔ آمینہ کے متعلق 2-4 باتیں ہوئی اور پھر اسی موضوع پر آ گیا۔ میں نے اسے سنایا کہ ایک ولندیزی اور ایک ہندو عورت ہمیں ایک پھندے میں لے گئی تھی۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ ہم وہاں سے نکل آئے تھے۔ میں نے اسے واقعہ بھی سنایا جب میں سورابایا میں داخل ہونے سے پہلے ایک ولندیزی کے گھر میں چلا گیا تھا اور ان لوگوں کے دھوکے میں آ گیا تھا۔ آپ خوش قسمت تھے کہ وہاں سے نکل آئے، ڈاکٹر جمشید نے کہا۔ اگر آپ اس پھندے سے نہ نکل سکتے تو وہ ان لوگوں کو دھوکہ کامیاب ہو جاتا اور وہ لوگ آپ کو گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیتے، پھر آپ کا کورٹ مارشل ہوتا اور آپ کو 2-3 سال سزائے قید مل جاتی۔ اس سے زیادہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ میں تو ایسے ایک پھندے میں پھنس گیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ مجھے نہ نکالتا تو میں قتل ہو گیا ہوتا۔ وہ میرے قتل ہی کی سازش تھی۔ یہ میرا ایمان ہے اور ہر مسلمان کا یہی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ پر چلنے والوں کی رہبری اللہ ہی کیا کرتا ہے۔ ڈاکٹر جمشید انور نے جب مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں قدر اس کی منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اتنا حیران نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر جمشید نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ایمان پکا ہو تو اللہ مدد کیا کرتا ہے۔ میرا بھی یہی ایمان تھا۔ انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں اس سے بھی زیادہ حیرتناک واقعات ہوئے ہیں، مگر آج پاکستان میں بیٹھ کر جب میں وہ وقت یاد کرتا ہوں تو دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان میں وہ ایمان نہیں رہا۔ ڈاکٹر جمشید نے یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ سنایا تھا۔ اسے میں اپنی زبان میں پیش کروں گا۔ ڈاکٹر جمشید نے مجھ سے پہلے انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں شامل ہوا تھا۔ وہ ڈاکٹر تھا اور کیپٹن بھی تھا، اس لیے وہ ایک اہم شخصیت تھا۔ مجھ جیسا کوئی سپاہی یا چھوٹے سے رینک کا آدمی مارا جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کسی افسر کے مارے جانے سے اور بھی بہت کچھ مر جاتا ہے۔ جمشید قتل ہو جاتا تو ایک ڈاکٹر مر جاتا، پھر ایک کیپٹن مر جاتا اور ایسا خلا پیدا ہو جاتا جسے کیپٹن ڈاکٹر ہی پور کر سکتا تھا، لیکن وہاں ڈاکٹروں کی کمی تھی۔ ڈاکٹر جمشید کی ایک اہمیت اور افادیت اور بھی تھی۔ وہ مبلغ بھی تھا اور جہاں جاتا وہاں جہاد کی تلقین اور تبلیغ کرتا تھا۔ میرے ساتھ باتیں کرتے اس نے میرا ذہن صاف اور جذبہ تیز کر دیا تھا۔ اسے جاننے والے ہندو اسے زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر جمشید INA میں سے نکل کر انڈونیشیا کے ایک بڑے شہر جکارتا پہنچا اور وہاں کے مسلمانوں سے ملا تو انہوں نے اسے اپنے گوریلا ہیڈ کوارٹر لے جا کر جنگ آزادی میں شامل کر لیا تھا۔ انڈونیشی بہت ہی خوش ہوئی کہ ایک ڈاکٹر مل گیا ہے۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر جمشید کی جوش اور جذبے سے ڈاکٹر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے لگا تھا۔ وہ 2-4 مہینے جکارتا میں رہا اور پھر سے ایک مشہور سورا کارتا بھیج دیا گیا جو وہاں سے تقریباً 90 میل دور تھا۔
वहाँ जख्मी ज़्यादा तादाद में आते थे। उस वक्त सोराकार्ता छोटा सा कस्बा हुआ करता था। आबादी की अक्सरियत मुसलमानों की थी, लेकिन ज़्यादातर कस्बे में मौजूद नहीं थे। वो लड़ने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर चले गए थे। कस्बे में इसी किस्म का एक अस्पताल बनाया गया था जैसा सूराबाया में बना हुआ था। कस्बे में औरतें थी या बच्चे या वो जवासाल आदमी नजर आते थे जो जख्मियों को लाते और एक दो दिन कस्बे में रुककर चले जाते। इसका मतलब ये नहीं था कि वहाँ कोई जवान आदमी था ही नहीं। कुछ घराने भी अंग्रेजियों के थे और कुछ ईसाइयों के भी। मुसलमान जवान भी नजर आते थे, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रुकते थे। डॉक्टर जमशेद वहाँ पहुंचा तो इसने अस्पताल की ड्यूटी संभाल ली और जख्मियों में मसरूफ़ हो गया। तीसरा या चौथा दिन तक हिंदुस्तानी इसके पास आया और कहा कि यहाँ एक घर मुसलमानों का है जिसमें माँ है और एक जवान बेसाल बेटी है। ये भी बताया कि इस औरत का खामिद जंग आज़ादी में शामिल था और 2-3 महीनों से इसका कुछ पता नहीं चल सका। इसकी जवान औलादी बेटी है और एक जवान बेटा है जो अपनी गुरीला पार्टी के साथ बाहर ही रहता है। मैं इत्तफाक से इस घर के सामने से गुजरा। इस हिंदुस्तानी मुसलमान ने कहा कि औरत दरवाजे में खड़ी थी और रो रही थी। मैंने रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि घर में कोई एक मर्द भी नहीं और उसकी बेटी को न जाने क्या हो गया है कि बहुत अजीबोगरीब हरकतें करती है। तुम मेरे पास क्यों आए हो? डॉक्टर जमशेद ने पूछा। क्या यहाँ और कोई डॉक्टर नहीं? आपके इस अस्पताल में और भी डॉक्टर हैं, इस हिंदुस्तानी मुसलमान ने कहा, लेकिन मैं उनकी ज़ुबान नहीं जानता। आपके पास इसलिए आया हूँ कि एक तो आप हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और दूसरी वजह यह है कि मैंने आपको आईएनए में देखा था। मैं भी फौज से भागकर आईएनए में आ गया था। इस इंडोनेशिया औरत की ज़ुबान तुम किस तरह समझ गए थे? डॉक्टर जमशेद ने पूछा। मैं जिस घर की बात कर रहा हूँ वो कोई ऊंचा तालीम याफ्ता घर मालूम होता है, हिंदुस्तानी मुसलमान ने जवाब दिया। औरत इतनी सी अंग्रेज़ी बोल सकती है कि अपना मतलब वाज़े कर लेती है। मैं भी इतनी सी अंग्रेज़ी जानता हूँ। डॉक्टर जमशेद का अंदाज इंक्वायरी या शक रफा करने वाला नहीं था। वो वैसे इस हिंदुस्तानी से कुछ बातें उगलवा रहा था। डॉक्टर जमशेद तो जोशीला नौजवान था। वो जाने को उठ खड़ा हुआ। वो इंडोनेशिया आया ही इस मकसद के लिए था। वो इस आदमी के साथ चल पड़ा। उस घर में एक उधेड़ उम्र औरत ने इसका इस्तकबाल किया। वो चेहरे के खदो खाल से इंडोनेशिया लगती थी। उसने अपने खामिद का नाम बताया जो मुझे डॉक्टर जमशेद ने बताया था, लेकिन याद नहीं रहा। वो बड़ी मगमूम और परेशान थी। डॉक्टर जमशेद ने इसके साथ अंग्रेज़ी में बात की और औरतें में अंग्रेज़ी बोली जो ग्रामर के लिहाज से खासी नाकिस थी, लेकिन डॉक्टर जमशेद इसका मतलब समझ गया। इसने घर के कमरों पर नज़र दौड़ाई, ज़ेबो ज़िबाइश देखी और फर्नीचर को देखकर उसे यकीन हो गया कि ये किसी तालीम याफ्ता और ऊंचे दर्जे के आदमी का घर है। डॉक्टर जमशेद को इंडोनेशिया मुसलमानों के घरों में जाने का कभी मौका नहीं मिला था। ये पहला घर था जिसमें वो दाखिल हुआ था। शायद ये वजह थी कि वो वहाँ के घरों की ऊंच नीच को नहीं समझता था। कुछ भी ना समझने की एक वजह यह भी थी कि जमशेद मर्द मोमन था और अपने किरदार की आंख से सब कुछ देखता था और इस वक्त इसके ज़हन पर एक मरीज़ा गालिब आई हुई थी जिसे देखने के लिए वो यहाँ आया था। अगर इसे बताया जाता कि ये एक मुकामी ईसाई या किसी बिलंदीजी का घर है और यह एक मरीज़ तड़प रहा है तो भी डॉक्टर जमशेद किसी खतरे की और किसी पाबंदी की परवाह न करता और वहाँ जा पहुँचता। औरत उसे एक कमरे में ले गई। इस कमरे का फर्नीचर वगैरह भी अमीराना था और हर चीज़ सलीके और करीने से रखी हुई थी। एक पलंग पर एक जवान लड़की लेटी हुई थी। बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी। इसके खदोखाल इंडोनेशियाई थे, लेकिन माँ से ज़रा मुख्तलिफ लगती थी। औरत ने बताया कि इसकी बेटी है और न जाने इसे क्या हो गया है। लड़की डॉक्टर को देखकर उठ बैठी। इसके चेहरे पर खौफ के तासुरात आ गए। वो डॉक्टर से दूर हटने के लिए पलंग पर सिरकती एक कोने में चली गई। इसकी माँ ने इससे प्यार किया, पुकारा और कहा कि डॉक्टर है और तुम्हें इस ज़हनी अजियत से निजात दिला देगा। वो अपनी ज़ुबान में बेटी से बात कर रही थी। डॉक्टर जमशेद नहीं समझ सका था। मुझे बात सुनाते हुए इसने कहा कि माँ अपनी बेटी को यही कहती होगी कि क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी थीं। हिंदुस्तानी जिसने अपना नाम अब्दुल खालिक बताया था डॉक्टर के साथ था। इसने डॉक्टर को बताया कि लड़की भी कुछ अंग्रेज़ी बोल लेती है और समझती भी है। इस वक्त डॉक्टर जमशेद को ख्याल आया कि अब्दुल खालिक का इस घर के साथ क्या ताल्लुक़ है। इसने अब्दुल खालिक से पूछा तो अब्दुल खालिक से बताया कि वो जब इंडियन नेशनल आर्मी से भाग कर आया था तो इस घराने ने इसे पनाह दी थी। इसने ये भी कहा कि इस घर में चूँकि कोई मर्द नहीं रहा और ये माँ बेटी अकेले, इसलिए वो इनकी देखभाल करने के लिए वक्तन फ़वक्तन आता रहता है। मुझे अगर इस डॉक्टर का सिर्फ ये वाक़ई सुनाना होता तो मैं ज़रा इसी तफसीलात भी सुनाता। कहानी खासी तवील है, लेकिन मैं ज़रा इख्तिसार से काम लूँगा। डॉक्टर जमशेद ने जान लिया कि लड़की को कोई जिस्मानी बीमारी लाहिक नहीं, वो अगर कुछ है तो वो एक जहन में है और ये सदमे का असर है। डॉक्टर जमशेद को एक शक ये भी था कि लड़की के साथ किसी ने ज़बरदस्ती या दस्तराजी और ज़्यादती की होगी। इस वक्त इंडोनेशिया में कोई कानून नहीं चलता था। पुलिस शायद होगी, लेकिन वो मफलूज और बेकार थी। एक सदमे के मुतल्लिक इसे बताया ही नहीं गया कि लड़की का बाप जंग आज़ादी में शामिल था और फिर उसका पता न चला। एक जवान भाई था, वो भी कुछ अरसे से घर नहीं आया था।
बहरहाल डॉक्टर जमशेद समझ गया कि लड़की के जहन में सदमे का बेपनाह असर मौजूद है और ये असर इसे पागलपन तक भी पहुंचा सकता है। डॉक्टर जमशेद उठा और लड़की के पास जाकर इसके सर पर हाथ रखा और अंग्रेजी में इसे कहा कि वो इसका हमदर्द है और इसके बाप और भाई को ढूंढ कर ले आएगा, लेकिन अभी वो इसे यानी लड़की को ज़हनी सुकून देने आया है और ये भी मालूम करना है कि इसके अलावा कोई बात है तो बता दे और डरे नहीं और ताउन करे। लड़की का जिस्म साकिन हो गया और वो आंखें फाड़े डॉक्टर के मुंह की तरफ देखने लगी। डॉक्टर पलंग पर बैठ गया और लड़की इससे ज़रा दूर सुकड़ी सिमटी बैठी थी। डॉक्टर ने हाथ से तरफ लंबा किया तो वो आहिस्ते से सिरकती डॉक्टर के करीब हो गई। डॉक्टर ने इसे मजीद तसल्ली तशफ़ी दी और बड़े प्यारे अंदाज में बातें की। लड़की ने डॉक्टर के एक बाजू पकड़कर अपनी पीठ के पीछे कर लिया और डॉक्टर के साथ इस तरह लगी जैसे डरा हुआ बच्चा अपनी माँ की आगोश में पना लिया करता है। डॉक्टर जमशेद पक्का मोमन था। वो मोमन तो पक्का था लेकिन उम्र भी कच्ची थी। इसकी उम्र 27-28 साल ही होगी। लड़की की उम्र 23-24 या ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल थी। डॉक्टर जमशेद ने मुझे बताया कि लड़की जब इसके बाजू के घेरे में आकर इसके जिस्म के साथ लगी तो इसके गाल लड़की के सर के साथ मस करने लगे। लड़की के खुले हुए बाल रेशम जैसे मुलायम थे। डॉक्टर जमशेद ने अपने जज्बात में कुछ अजीब सी हलचल महसूस की। इसका ये मतलब नहीं कि इसकी नीयत बद हो गई थी, बल्कि मतलब सिर्फ इतना था कि इसे अपनायत का एहसास होने लगा और ये एहसास भी था कि इस लड़की के साथ इसका कोई और ताल्लुक भी यहाँ हो सकता है। लड़की की माँ इसका देखकर खड़ी जिस तरह इसकी बेटी की पीठ थी। वो डॉक्टर की तरफ देखकर मुस्कुराई और सर से हल्का सा इशारा करके बाहर निकल गई। इशारे का मतलब ये था कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो ठीक है, और इसे यानी माँ को इस पर कोई एतराज़ नहीं। अब्दुल खालिक भी बाहर निकल गया। इनके जाने के बाद लड़की का खौफ कुछ कम होने लगा। किसी वक्त लड़की का जिस्म अचानक लस जाता जैसे झटका लगा हो। यह मैं अपनी थोड़ी सी राय देना चाहूँगा, वो इसलिए कि बाज़ लोग ये वाक़या पढ़कर कहेंगे कि डॉक्टर अच्छा मोमन था कि इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर पिघल गया। डॉक्टर जमशेद के उस वक्त के तासुरात को वही शख्स समझ सकता है जिसने कुछ अरसा इन हालात में गुजारा हो, जिन हालात में इस डॉक्टर ने उम्र के 4 साल गुजार दिए थे। ये कैफियत मुझ पर भी तारी हो चुकी थी। आपको याद होगा कि बर्मा के जंगलों में ऐसी खूबसूरत लड़की ने मुझे भी इस आजमाइश में डाल दिया था। ज़रा तसव्वुर में लाएं कि आप 3-4 बरस जंगल में जानवरों की तरह भटकते फिर रहे हों, जानवरों की तरह खुराक और पनाह ढूंढते फिरते हैं। फिर आपको एक ऐसी जंग में भेज दिया जाता है जहाँ सिर्फ गोलियाँ चलती हैं और मौत के कहके सुनाई देते हैं। आपके असाब पर मुसलसल बोझ भी पड़ रहा है और खिंचाव ऐसा जो बाज़-औक़ात नाकाबिले बर्दाश्त होकर दिमागी तवाज़ुन बिगाड़ देता है। ऐसे हालात में एक जवान लड़की आपके इतनी करीब आ बैठती है कि आपके जिस्म की तपश और बू भी महसूस कर सकते हैं। तो उस वक्त आपको अपना घर याद आएगा, माँ भी, बहन भी, और कोई बेटी हो तो वो भी, और अगर बीवी है तो और ज़्यादा याद आएगी। आपको इस खूबसूरत लड़की के वजूद में सब कुछ नज़र आने लगा, माँ भी, बहन भी, और बेटी और बीवी भी। मैं इन तासुरात को अच्छी तरह और पूरे वसूख के साथ इसलिए बयान कर सकता हूँ कि मैं इस पूरे सराज से गुजरा हूँ। डॉक्टर जमशेद की नीयत बद नहीं हुई, ना ही इसमें हीवानी जज्बात पैदा हुए थे, लेकिन यह ख्वाहिश यकीनन बेदार हुई थी कि ये खूबसूरत और मुलायम जिस्म लड़की कुछ देर और इसके साथ लगी बैठी रहे और इसके साथ प्यार और हमदर्दी की बातें करता रहे। ज़हन में यह हकीकत रखें कि डॉक्टर जमशेद इंसान भी था और जवान भी। इसने लड़की को अपने बाजू की गिरफ्त में और ज़्यादा ले लिया और इसके साथ बातें करने लगा। लड़की का अंदाज ऐसा हो गया जैसे इसने अपना सरापा और अपना वजूद जमशेद के हवाले कर दिया हो। लड़की की अंग्रेज़ी बहुत ही नाकिस थी और वो कुछ बातें इशारों से वाज़ेह करती थी, लेकिन डॉक्टर जमशेद इसका आर्ज़ा समझ गया था। लड़की से कह रही थी कि वो हर वक्त इसके पास रहे, लेकिन डॉक्टर से बताया कि ये इसके मुमकिन नहीं, वो उसके पास आता रहेगा। फिर डॉक्टर जमशेद ने इससे कहा कि वो इसे एक दवाई देगा जिससे नींद आ जाएगी और जिस ज़हनी बेचैनी या सदमे में मुब्तला है इसमें खासा अफाका होगा। डॉक्टर जमशेद को यहाँ आते ही एक बैग दे दिया गया था जिसमें एमरजेंसी की तमाम ज़रूरी दवाइयाँ डाली गई थी। उसने गोली बैग से निकाल कर लड़की को दी और कहा कि ये भी पानी के साथ ले ले। लड़की ने गोली तकी के नीचे रख दी और कहा कि गोली डॉक्टर के जाने के बाद लेगी। डॉक्टर ने कहा कि वो गोली अभी ले, लेकिन लड़की ने कहा कि जब तक उसके पास मौजूद है वो गोली नहीं लेगी, क्योंकि इसकी मौजूदगी में वो बेदार रहना चाहती है। डॉक्टर इसकी बातों में आ गया और कुछ देर इसके पास बैठा रहा। इसने देखा कि लड़की इस तरह इसके और ज़्यादा करीब होने की कोशिश कर रही थी जैसे इसके जिस्म में समा जाना चाहती हो। आखिर डॉक्टर उठा और लड़की के सर पर हाथ फेर कर आने का वादा करके निकल गया। इसने लड़की की माँ को बताया कि वो एक गोली दे चला है जो लड़की को भी पानी के साथ देनी है। इसने ये भी बताया कि थोड़ी देर बाद गहरी नींद सो जाएगी और जब जागेगी तो इसकी हालत बेहतर हो जाएगी। इसने माँ को ये भी बताया कि ये सदमे का असर है और घबराने की कोई वजह नहीं। माँ ने परेशानी के आलम में बताया कि इस लड़की का इलाज ना हुआ तो ये ठीक है कि ये पागल हो जाएगी। इसने बताया कि रात गहरी नींद से जाग उठती है
اور بڑی زور کی چیخ مارتی ہے جس سے ماں کا دل دہل جاتا ہے۔ اچانک بیٹھے بیٹھے بلند آواز سے بولنا شروع کر دیتی ہے اور اس طرح ہر طرف اوپر نیچے دیکھتے جیسے اسے کوئی غیر مرئی چیز نظر آ رہی ہو۔ ڈاکٹر جمشید نے مجھے بتایا کہ اس کی تشخیص کے مطابق یہ اعصاب زدگی کا کیس تھا اور اعصاب زدگی کا باعث صدمہ تھا۔ اگر اس لڑکی کے بارے میں ڈاکٹر جمشید کی نیت شیطانی ہوتی تو وہ مجھے یہ بات اس طرح سناتا جیسے اس لڑکی کے حسن و جوانی سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا ہو اور ایک مرد مومن کی طرح اس کا علاج شروع کیا تھا۔ لیکن ڈاکٹر جمشید نے بڑی ہی صاف گوئی اور صداقت سے مجھے یہ واقعہ سنایا اور لڑکی کی قربت نے اس کے جذبات میں جو ہلچل مچائی تھی وہ مکمل طور پر سنائی۔ پھر سے کہا کہ اس کی نیت بری نہیں تھی، البتہ لڑکی اس کے ذہن پر سوار ہو گئی تھی۔